You are watching Jawali News. आप देख रहे हैं जवाली न्यूज। You are watching Superfast English News. A man has been whipped by what he describes as the angriest octopus while swimming on holiday at a Western Australian beach. In a video that has gone viral, the octopus can be seen in shallow waters lashing out at geologist Lance Carlson. Dozens of people are feared dead after a train carrying some 350 passengers derailed inside a tunnel in Taiwan. Taiwan's Central Emergency Operations Center says rescuers are struggling to access 4 carriages inside the tunnel that are badly damaged. Nike has won its lawsuit against Brooklyn art collective MSCHF over their controversial Satan shoes that contain a drop of real blood in the soles. An Australian Olympic kayaker and his brother have been found guilty of attempting to smuggle $20 million of cocaine into the country. Nathan Bagley and Drew Bagley will be sentenced later this month. India reports 81,466 new cases, highest in 6 months. As many as 82,000 new cases were reported in a span of 24 hours, the biggest single-day rise in 6 months. Nandigram failed to shrug off violence despite adoption of unprecedented measures by the Election Commission to maintain peace for a fair election. Income tax officials currently searching 4 places in Chennai, including residences of M.K. Stalin's daughter in Tenampet and Nilangarai. 2 other locations are also being searched. Music stars Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Miley Cyrus and Cardi B are in the running for 2021 Brit Awards International Female Solo Artist. A top Biden aide will lay out the emerging US strategy towards North Korea in a meeting with his Japanese and South Korean counterpart. US voices concern to Mexico about deteriorating climate for energy investors. In Kakapura, Pulwama encounter, 3 terrorists trapped at the site of encounter. Operation by the police and security forces is underway. The National Investigation Agency on Thursday evening detained a woman who was seen on CCTV cameras with API Sachin Waze leaving a 5-star hotel in South Mumbai before the controversy over the car explosive case broke out. The Manchester City already have one hand in the Premier League trophy, but the battle for the top 4 is likely to go down to the wire as a clutch of clubs seek to join Europe's elite next season. From Dubai, the contentious umpire's call will continue to be a part of decision review system. The International Cricket Council's board ruled on Thursday, but introduced a few changes to the current DRS protocols. The Indian Cricket Board has assured the International Cricket Council that it will be able to guarantee visas and tax arrangements for the upcoming T20 World Cup in India in October-November later this year. The Pakistan Cricket Board has asked for guarantee from BCCI over issuing visas to its player for the marquee tournament. BCCI informed the ICC board in its quarterly meeting that the issue is expected to be resolved over the next month. ICC and BCCI had already been at the loggerheads over tax exemptions for hosting a World Cup for a couple of years. Former Indian wicketkeeper Parthiv Patel picked Rishabh Pant as the X-factor for Delhi Capitals side and said he is a brilliant player who can be better than former skipper MS Dhoni. Under the auspices of Chabali Cricket Academy, a summer camp is being held from 2nd April from 6 to 10 in the morning at Ranital Cricket Maidan, in which players from 5 years to 25 years of age will be made aware of cricket silliness. Interested players can contact for their registration to Rajiv Singh Pariyar and Siddharth Tiwari.
Mumbai Punjab Kings batting coach Wasim Zafar has said that definitely always see the aggressive Lokesh Rahul play in IPL 2021. Zafar said that Rahul batted a little fearfully last season as the team did not have much batting after number 5 and Glenn Maxwell was also not able to hit. आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए सभी विभागों को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का परिपालन करना सभी के लिए आवश्यक है। यातायात विभाग भी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। वाहन चलाने वाले लोगों पर लगातार निगरानी की जा रही है। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन न हो। लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकले और वाहन चलाएं। एक वाहन पर प्रोटोकॉल के मुताबिक लोग सवार हों, हेलमेट पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों का पालन करें। प्रोटोकॉल के नियमों का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना कार्रवाई भी की जा रही है। को नियंत्रण में लाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ही सभी को मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी गई है और इसके लिए जबलपुर ज़िले के समस्त यातायात पुलिस के द्वारा जितने शहर के ऐसे चौराहे हैं, व्यस्ततम चौराहे हैं, वहाँ पर वो घोषणा करवाई जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क अवश्य पहने ताकि वो कोरोना के संक्रमण से बच सकें। और अगर वो कोरोना को फैलाने वाला कोई कार्य करते हैं, जैसे मास्क नहीं लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही में जिन दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान में प्रवेश करने वालों बिना मास्क के प्रवेश कर रहे हैं और खुद बिना मास्क लगाए बैठे हैं, तो अगर उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी धारा 144 के तहत गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आग्रह किया गया है। तो इस प्रकार जो है जिले का समस्त यातायात बल और थानों के बल को कोरोना की रोकथाम के प्रयास के लिए निर्देशित किया जा चुका है। यातायात का अत्यधिक दबाव होने की वजह से कुछ दिनों के लिए एसपी ऑफिस से तहसील चौक जाने वाले रास्ते को एकीकृत घोषित कर दिया गया है। बैरिकेड लगाकर बड़े वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। इस रास्ते पर बड़े वाहनों की आवाजाही की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या सामने आ रही थी, जिसे देखते हुए इसे एकीकृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस और यातायात के जवान यहाँ तैनात हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं और निर्धारित रास्ते पर जाने की नसीहत दी जा रही है। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक इस रास्ते पर आवागमन एकीकृत किया गया है। ग्राम बागराजी में रहने वाले चेतराम विश्वकर्मा और विधवा सतुलिया विश्वकर्मा का आरोप है कि खसरा नंबर 327 रकबा प्लॉट हल्का नंबर 2 कुंडम इमली में स्थित है, जिसके कागजात दुरुस्त कराने के नाम पर हुकुमचंद नामक व्यक्ति ने हड़प ली है और उसे अपने नाम पर करवा लिया है। हुकुमचंद साहू ने उनकी संपत्ति को विजय कुमार विश्वकर्मा को बेच दी है। तहसीली न्यायालय में कूटनीतिक दस्तावेज पेश कर यह पूरी धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई गई है। इन लोगों ने 420 की रजिस्ट्री कराई है। जो वास्तविक मालिक है वो चेतराम बल्द फकीरा सतुलिया बेवा बबोली के नाम रिकॉर्डों में दर्ज है ये ज़मीन। हमने रिकॉर्ड भी निकलवाया है, लेकिन इन लोगों के पास कैसे आई हुकुमचंद साहू के पास, पिता बैनी प्रसाद साहू, ये हमको मालूम नहीं है। वो 25-30 वर्षों से काफ़ी सालों से अज्ञातवास में हो, वो लोग यहाँ है भी नहीं हैं। इन लोगों ने उस ज़मीन को हड़प ली है, अपने नाम दर्ज करा ली। संतोष कुमार विश्वकर्मा बखराजी। हमारे मोहल्ले में पूर्वजों से पहले से सनातन से रास्ता था, लेकिन भूमाफिया लोग हुकुमचंद बल बैनी प्रसाद को मोहरा बना के उसके नाम पे ज़मीन करवा के वो खरीद लिया। फकीर चेतराम बल्द फकीरा और बेवा सतुलिया, ये सब विश्वकर्मा की ज़मीन है, वो यहाँ की उनको पता ही नहीं है और ये लोग खरीदे फर्जी 420 ही। हमारे बाप दादे भी चले गए और भी चले गए, किसी को पता नहीं है, वो ये लोग खरीद लिया अभी के हमारे सामने के पैदा। कब्जा किया है, वो माफिया कौन है? वो विजय कुमार विश्वकर्मा और दीपचंद धनगर,
जमीन खरीदन है 1 एकड़ 61 डेसिबल, कब्जा करे हैं 3-4 एकड़ पे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हमको ये चाहते हैं कि जिसकी ज़मीन है उसको दी जाए और जो हमारा सनातन का रास्ता है वो हमको मिले। आज आप कहाँ हैं? तिलवारा थाना अंतर्गत ग्राम खुलरी में नीलेश उपाध्याय अपने खेत में हार्वेस्टर चला रहे थे। अचानक हार्वेस्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ और खेत में आग लग गई। इस आग की वजह से उनकी 7 एकड़ की खेत की फसल जलकर राख हो गई और हार्वेस्टर भी आग में जल गया है। नीलेश उपाध्याय के खेत के आसपास के कई एकड़ के खेत भी जलकर खाक हुए हैं। लगभग 30 से 40 एकड़ खेतों की फसल बर्बाद हुई है। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के गाँव के लोग और किसान काफी मशक्कत करते रहे, लेकिन वह आग पर काबू नहीं पा सके और आग ने विकराल रूप ले लिया। रांझी चंपा नगर में हादसों का शिकार बनी बोरिंग की गई अंडरग्राउंड। हम लोग आज यहाँ हार्वेस्टर चलवा रहे थे जी, तो शॉर्ट सर्किट से अचानक खेत में आग की लपटें दिखी। हम लोगों ने दौड़ के बुझाने का प्रयास किया पर हम लोग बुझा नहीं पाए। 2 एकड़ में हमारी गेहूं की फसल लगी, वो पूरी जल के नष्ट हो गई जी। साथ में ये हार्वेस्टर में भी आग लग गई जी। बाजू में नोता वाले मनोधिया जी उनके खेत में आग लग गई जी। और कोटवार है उसके खेत में आग लग गई जी। गंगई से डब्बल सिंह ठाकुर जी है, उनके 2 खेतों में आग लग गई। ऐसे लगभग 20-22 एकड़ खेतों में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ लोगों का। तो कहाँ के लोग पहुँच गए बुझाने के लिए? यहाँ खुलरी से लोग आ गए थे, बरगढ़ से आ गए थे, गंगई से आ गए थे, मोता से आ गए थे, कमेटी से, ऐसे 4-6 गांव से लोग आ गए थे। और साथ में ट्रैक्टर वगैरह ले आए, तो ट्रैक्टरों की सहायता से और पब्लिक की सहायता से ये आग पर काबू पाया जी। रांची स्थित लाला लाजपत राय वार्ड क्रमांक 70 के चंपा नगर में बीच सड़क में हादसों का शिकार बनी ओपन बोरिंग को राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के पहल से गुरुवार को नगर निगम टीम द्वारा संज्ञान लेते हुए ओपन बेरिंग व ओपन इलेक्ट्रिक वायर को अंडरग्राउंड करते हुए क्षेत्रीय जनता की समस्या को निजात दिलाया। आपको बता दें कि चंपा नगर में क्षेत्रीय लोगों की प्यास बुझाने के लिए नगर निगम ने बीच सड़क में ओपन पानी की बोरिंग कर दी थी, जिसके चलते हाल ही में एक गाय बोरिंग से निकली वायर की चपेट में आकर करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं क्षेत्रीय जन इस ओपन बोरिंग से हादसों के शिकार हो रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम में की, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जब इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के संभागीय अध्यक्ष संजय भाटिया को लगी, तो उन्होंने तत्काल चंपानगर स्थित ओपन बोरिंग का निरीक्षण करते हुए क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल ही एक ज्ञापन रांची जोन अधिकारी को देते हुए ओपन बोरिंग को अंडरग्राउंड करने की मांग की। जोन अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए ओपन बोरिंग का मरम्मत कार्य करवाते हुए बीच सड़क में लगी बोरिंग को अंडरग्राउंड करवाते हुए ने क्षेत्रीय जनता को राहत दी। नगर निगम में ज्ञापन दिया था। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन से हूँ और हमारी संस्था जो है वो जनहित में कार्य कर रही है। जैसे ही मेरे को खबर लगी कि वहाँ पे एक जानवर ख़त्म हो गया है, उसी दिन मैंने स्पॉट पे जाके वहाँ पे सर्वे किया और मैंने देखा कि तार वहाँ पे ओपन थी और नंगी तार थी, जिसको नगर निगम द्वारा अंडरग्राउंड भी नहीं कराया गया था। तो मैंने ये सब देखा और वहाँ पे जो जन समस्याएँ थी, लोगों से जानकारी ली, तो वहाँ क्षेत्रीय वासी बहुत परेशान थे उस पंप को लेके। वो बोलते हैं कि जब भी यहाँ से कोई निकलता है तो रात बेरात एक्सीडेंट होते रहते हैं हमेशा, और कुछ ना कुछ दुर्घटना यहाँ लगी रहती है। और हम लोग लगातार नगर निगम में कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनता नहीं है। तो हमने एक नगर निगम में एक ज्ञापन सौंपा कि जनहित में कार्य हो और लोगों की समस्या का समाधान हो। तो हम ये चाहते थे कि वहाँ की क्षेत्रीय जनता को जो समस्याएं हो रही हैं उनसे उनको छुटकारा मिले। तो हमने ज्ञापन सौंपा था नगर निगम जोन में, और उसके बाद हमने 2-3 बार अधिकारियों से बात भी की कि भैया हमारे ज्ञापन का क्या हुआ, हमारा जो कार्य है वो जल्द से जल्द कराएं। तो उनने हमको 1 अप्रैल का समय दिया था और आज नगर निगम की पूरी टीम वहाँ पे पहुँची थी और पूरा कार्यक्रम उनने वहाँ पे किया। चैम्बर पूरा बना के लाए थे। आज एक ही दिन में उनने पूरा चैम्बर बना के उसको अंडरग्राउंड कर दिया है और केबल को भी अंडरग्राउंड कर दिया है। मैं तहे दिल से नगर निगम का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारी पत्र द्वारा उसमें देख के मैं संजय भाटिया, संभागीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन जिला जबलपुर संभाग,
और जनहित में आगे भी हम लोग ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। समाज सेवा में हम लोग जुड़े हैं और समाज सेवा करने के लिए ही मैदान में उतरे हैं और हमेशा जनहित में कार्य करेंगे। कोई भी क्षेत्र हो, रांझी का, जबलपुर ज़िले का कोई भी क्षेत्र हो, उस ज़िले में अगर कोई समस्या होगी तो हम प्रशासन से उस समस्या का समाधान करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं ये गोपी किराना के सामने है, एक ओपन पे बोरिंग थी। बोरिंग के साथ वायर जो था, इलेक्ट्रिक वायर, वो मीटर अलग लगा हुआ था, बोरिंग अलग थी। अभी 15 दिन पहले गाय, कुछ नहीं, उसका पैर फंसा और जो वायर जॉइंट था उससे करंट खाकर वो गाय मर गई। और गाय नहीं मरने के अलावा किसी मनुष्य के साथ या किसी अन्य के साथ ये दुर्घटना होती तो बहुत बड़ी हो सकती, क्योंकि पब्लिक प्लेस है ये। और अभी जानकारी में आया कि मानव अधिकार फाउंडेशन के हमारे संजय भाटिया जी, उन्होंने उसकी व्यवस्थाएं करवा के उसमें चैम्बर बनवाया, उसको व्यवस्थित करवाया। तो चंपानगर की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए अलग अलग सेंटर बनाए हैं और प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 200 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 64 शहरी केंद्र हैं और शेष ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। सभी सेंटर में लोग उत्साह से टीकाकरण करवा रहे हैं। सांसद राकेश सिंह ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। इतने कम समय में वैक्सीन बनाई गई है और देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। सांसद राकेश सिंह ने कहा वह रेड क्रॉस में 10 लोगों का टीकाकरण हो सके उसके लिए राशि जमा करवा रहे हैं। शासकीय अस्पताल में उन्होंने टीके इसलिए लगवाया है ताकि जो शासकीय अस्पतालों में आए और स्वयं भी टीका लगवाएं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति एक आम नागरिक होने के नाते मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में देश के महान वैज्ञानिकों ने अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया और इतने कम समय में वैक्सीन तैयार की। पूरे देश में वैक्सीन लगने का काम तेजी के साथ चल रहा है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में भी लगभग 200 स्थानों पर वैक्सीन लग रही है, जिसमें से 64 केंद्र शहरी हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। और हर केंद्र पे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। मैंने स्वयं भी आज वैक्सीन लगवाई है। वैसे मुझे शुल्क देकर ही वैक्सीन लगवाना थी, लेकिन अगर शुल्क देकर वैक्सीन लगवाएं तो उसके लिए मुझे किसी निजी अस्पताल में जाना पड़ता। लेकिन लोग शासकीय अस्पताल की तरफ उन्मुख हों, वहाँ जाकर वैक्सीन लगवाएं, इसलिए मैंने यहाँ लगवाने का फैसला किया है। लेकिन कम से कम 10 लोगों को वैक्सीन लग सके उतनी राशि मैं आज अपनी ओर से रेड क्रॉस में उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि किन्हीं ऐसे लोगों के वो पैसा काम में आ सके जिन्हें ज़रूरत है।